कर लेते हैं स्टार्ट, मुझे लगता है ना सर? Yes, Good evening to all of you. All the students are requested to mention your name, roll number, and college name in the chat box. On the behalf of respected principal ma'am, Dr. Meenakshi, Government College for Women Palwal, all teaching and non-teaching staff of the college, I, Amita Rani, Assistant Professor of Commerce and Organizing Secretary of this session, welcomes you all in this state level extension lecture on the subject Negotiable Instrument Act 1881 under Legal Literacy Cell and Department of Commerce of the college. It's my great pleasure to welcome the guest speaker of this session, Mr. Vikram Maan, Assistant Professor of Commerce. Welcome, Vikram sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite our respected principal, ma'am, Dr. Meenakshi, for formal welcome of our guest speaker. Meenakshi, ma'am. Thank you, Amita ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, respected Vikramjit Maan, our today's resource person, my fellow colleagues and dear students. It is a glorious moment for me to extend a warm welcome to our today's resource person, Dr. Vikramjit Maan, Assistant Professor of Commerce, GC Bheria. Students, our resource person is highly dedicated and knowledgeable academician. He has a very vast experience in various fields of commerce, and his diversity is being reflected in his rich biodata, which will be read out by Madam Amita. On behalf of college fraternity, I extend my heartfelt thanks to you, sir, for accepting our invitation for delivering a talk on a very difficult topic of law. I would also love to welcome all the participants from various colleges of Haryana and my fellow colleagues for taking a keen part in the extension lecture. I'm sure you all will feel enriched with knowledge after this program. I would also like to congratulate Legal Literacy Cell and whole Commerce Department for organizing an extension lecture for the students of commerce. I welcome you all once again to the lecture and hope you all will have a great time ahead. Thank you very much and best wishes from my side. Thank Over you, to you, Amita ma'am. Okay, thank you, Meenakshi ma'am. Now, before we start, let me introduce you all with our guest speaker, Mr. Vikram Maan. He has completed his schooling from Army Public School. He has completed his graduation, his post-graduation, and MPhil from Kurukshetra University, Kurukshetra. He has qualified UGC NET and GRF also. He joined his services as assistant professor in 2017. Currently, he is working in Government College Beheria, Pehowa. He is very supportive and hardworking. I hope you all will get good knowledge about Negotiable Instrument Act, which is the topic or subject for today's session. Thank you, sir, for being with us today. Now, without getting much time, I would like to hand over the mic to our guest speaker for today's session, Mr. Vikram Maan. Welcome, Vikram Maan, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Principal ma'am, Meenakshi ma'am, Organizing Secretary, and the organizing team, as well as the convener, Preeti ma'am, for inviting me to this discussion on Negotiable Instrument Act. I am heartily, मैं क्या कहूँ, ठीक है, हो सक, because this is an event I didn't expect at this stage of time when my service is not so long, giving me this opportunity. Without wasting much time, I would like to start my PPT and the discussion on the relevant topic of today, that is Negotiable Instrument Act 1881.
Shall I start? Please, sir. Please, sir. Okay, ma'am. Is my screen visible, ma'am? Yes, it is visible, sir. Okay. Welcome all students to this lecture on Negotiable Instrument Act 1881. I, Vikramjit Maan, Assistant Professor from Government College Bheria, welcome you all. स्टार्ट करते हैं अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बेसिक्स से, तो फर्स्ट थिंग इज ये एक्ट इंडिया में आया 1881, बट अगर हम कहें इनैक्टमेंट या इंप्लीमेंटेशन जो इसकी हुई है वो हमारी 1 मार्च 1882 को हुई थी। एप्लीकेबिलिटी की बात यदि हम करें, इट इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K, जम्मू कश्मीर को छोड़कर होल ऑफ इंडिया में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन की गई है, इसको फॉलो किया जाता है। सोर्स की बात करें तो इंग्लिश कॉमन लॉ से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंडिया में आया, एंड द पर्पस इज बेसिकली मर्केंटाइल पर्पस दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसमें इस एक्ट के तहत हम केवल 3 चीजों को मद्देनजर रखते हैं। द वन इज प्रोमिसरी नोट, सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड थर्ड चेक। नाउ व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 चीजों से बना है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मीन यहां पर वो नहीं है जो आप समझते आए हैं, दैट इज हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि नेगोशिएबल इज जिसका हम बार्गेनिंग कर सके या हम प्राइस जो है वो अपने अकॉर्डिंगली टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको कर सके। बट नेगोशिएबल यहां पर मतलब रखता है ट्रांसफरेबल फ्रॉम one person to another in return for consideration. And instrument का meaning होता है a written document by which a right is created in favor of some person. Therefore, a negotiable instrument under this act is a document which entitles a person to a sum of money which is transferable from one person to another. Negotiable Instrument Act include करता है promissory note under section 4, bills of exchange under section 5, checks under section 6, और चेक के अंदर ही हम डिमांड ड्राफ्ट को भी इंक्लूड करते हैं। बट इट एक्सक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स। ट्रेजरी बिल को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं लेते, हुंडीज को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं लेते, बट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंडीशन अप्लाइड, यहां कुछ कंडीशंस हैं जो हम लेटर ऑन इस डिस्कशन में डिस्कस करेंगे कि हुंडीज को हम कभी कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसीडर करते हैं और कभी कभी नहीं करते। फिर आता है पोस्ट ऑफिस ऑर्डर। पोस्ट ऑफिस ऑर्डर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं करते। साथ ही करेंसी नोट्स को, जो एक बियरर डॉक्यूमेंट है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है वो ये प्रॉमिस करता है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी विच इज रिटन ऑन द नोट, बट फॉर करेंसी पर्पस एंड टू control purpose, the Reserve Bank of India does not allow it to include in the negotiable instruments. Common features की यदि हम बात करें तो पहला कॉमन फीचर जो सभी इन तीनों में आता है, चाहे वह चेक है, चाहे वह बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे आपका प्रोमिसरी नोट है, तो फर्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन बेसिकली जो भी हम इंस्ट्रूमेंट होल्ड करते हैं, यदि हम उसको आगे ट्रांसफर कर पा रहे हैं, यदि उसमें ये फीचर अलाउड है, तो हम उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत लाते हैं। ये 2 तरीके से किया जा सकता है। द फर्स्ट इज एंडोर्समेंट, दैट इज रिटन फॉर्म, एंड दूसरा होता है डिलीवरी। डिलीवरी ज्यादातर बियरर इंस्ट्रूमेंट्स में की जाती है। एंडोर्समेंट तब की जाती है जब हमारे इंस्ट्रूमेंट पे नाम मेंशन हो। रिटन फॉर्म में यदि हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो उसके ऊपर यदि नाम है, जिसको भी हमने वो दिया है, जिसको हमने पैसे देने हैं, यदि उसका नाम उसमें मेंशन है तो हम वहां पर एंडोर्समेंट करते हैं। सिर्फ डिलीवरी करने से वहां पर पर्पस सॉल्व नहीं होगा। सेकंड फीचर जो कॉमनली पाया जाता है वह है इंडिपेंडेंट टाइटल। इसका मतलब है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। जो भी ट्रांसफरी
होता है जिसके फेवर में हम चेक इशू करते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं या प्रोमिसरी नोट बनाते हैं, उसका ट्रांसफर करने वाले से टाइटल बिल्कुल अलग होता है। सपोज एक्स ने एक चेक बनाया जो उसने वाई को देना था, बट बीच में कोई थर्ड पर्सन उस चेक को चोरी कर लेता है, वो थर्ड पर्सन उस चेक को चोरी कर लेता है और उस चोरी करे हुए चेक को वो किसी अन्य पर्सन को दे देता है। तो यहां पर जिस व्यक्ति के पास में अल्टीमेटली ये चेक पहुंचा, उसका टाइटल टोटली इंडिपेंडेंट होगा उस व्यक्ति के टाइटल से जिसने फ्रॉड से ये चेक लिया। तो यहां पर उसको डिफेक्टिव टाइटल नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट टाइटल का ये मतलब यहां पर निकल के आता है। थर्ड इज सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, ऑफ मैच्योरिटी एंड पर्सन। अमाउंट, जो भी अमाउंट हम मेंशन करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो सर्टेन होता है, डेफिनेट अमाउंट होता है। ऐसे ही मैच्योरिटी, जितना टाइम ड्यूरेशन हम देते हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को परिपक्व होने के लिए, जो समय सीमा मिलती है, वो भी डेफिनेट होती है। या तो वो 2 मंथ्स होगी, 3 मंथ्स होगी, व्हाटएवर, वो डेफिनेट होगी। इसी तरह से पर्सन्स, जो पर्सन इन्वॉल्व हैं इन द ट्रांसफर ऑफ दीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी सर्टेन होने चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होने चाहिए। फोर्थ इज फीचर दैट इज इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज राइट टू सू। राइट टू सू मतलब होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये अधिकार होता है कि यदि उसकी पेमेंट नहीं की गई, यदि उसका चेक डिसऑनर होता है, यदि उसका प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है, तो वह कंसर्न पार्टीज को होल्ड कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है उनके अगेंस्ट। एंड द लास्ट इज रिटर्न फॉर्म। ऑल दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज चेक और promissory note और bill of exchange, it must have to be in written form. नेक्स्ट हम आते हैं, हमने बोला ट्रांसफर करने का। तो पहला फीचर हमने करा था ट्रांसफरेबिलिटी, या जिसको हम कह देते हैं नेगोशिएशन, जिससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का नाम पड़ा। नेगोशिएशन 2 प्रकार से की जा सकती है। द फर्स्ट इज अंडर सेक्शन 47 नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, एंड द सेकंड इज नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, वेयर अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज पेबल टू द बियरर। जहां पर बियरर जो होल्ड कर रहा है चेक को, चाहे उसका नाम उसमें है या नहीं है, अगर इस प्रकार का है तो इट मे बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी। एग्जांपल ए, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बियरर डिलीवर्स इट टू बीज एजेंट टू कीप इट फॉर बी। वो बी के एजेंट को वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रदान करता है, तो यहां पर नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कहलाई जाएगी। एंड द सेकंड इज सेक्शन 48 नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अ प्रॉमिसरी नोट, अ चेक और अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू ऑर्डर एंड कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट का यहां पर मतलब है अ सिग्नेचर authorizing the legal transfer of a negotiable instrument between the parties. In its literal sense, writing on the back of the instrument ही हम एंडोर्समेंट कहते हैं, बट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसका मीनिंग होता है द राइटिंग ऑफ वंस नेम ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एनी पेपर अटैच्ड टू इट विद द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट्स देयरिन। यानी यदि हम एंडोर्समेंट से नेगोशिएशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत किसी चेक की या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट की, तो हमें अपनी राइटिंग में उसके पीछे से अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा और साथ में लिखना पड़ेगा हम उसको किसको दे रहे हैं, किसके नाम कर रहे हैं। तो वहां पर नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कहलाता है। अब क्या क्या जरूरी विक्रम सर, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको। हो सकता है मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे लगता है आपकी स्क्रीन जो है वो रन नहीं कर रही है, एक जगह स्टैटिक है सर। फर्स्ट जो है आपका वो नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है मेरी प्रॉब्लम हो नेटवर्क की। एक बारी हम बात कर रहे थे, स्टूडेंट आपको विजिबल है बेटा? नो मैम। तो ये स्टूडेंट, हाँ सर आप शो नहीं हो रही थी। हाँ ये फर्स्ट ये सर, अब आपका स्क्रीन ये अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। ओके मैम, ओके मैम। आप इसे सर कर सकते हैं, आप इसको स्लाइड शो रन कर लीजिए करंट स्लाइड से, तो मुझे लगता है कि पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अदरवाइज ये भी विजिबल है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे जैसे अब दिख रहा है? यस दिख रहा है सर, दिख रहा है।
बट फुल स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, आपकी साइड स्क्रीन भी नजर आ रही है क्योंकि आप स्लाइड शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके ऊपर आता है ना सर आपका पावर पॉइंट, जो आपका आता है ऊपर पावर पॉइंट शो। जी मैम, स्लाइड शो मैंने लगाया है। स्लाइड शो लगाया है सर? अच्छा जी। नहीं कोई बात नहीं, ये भी विजिबल है सर, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात नहीं मैम, हम ऐसे चला लेते हैं। जी जी सर जी। जी नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट। यदि हम एंडोर्स कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट इज इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जो भी एंडोर्समेंट हम करेंगे, एंडोर्समेंट कह रहा हूं मैं यहाँ पर, डिलीवरी नहीं कह रहा, एंडोर्समेंट जो भी हम करेंगे इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट। इट मे बी ऑन द बैक और फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और अगर कोई स्पेस ना रहता हो इट मे बी ऑन अ सेपरेट पेपर अटैच्ड अलोंग। हम एक पेपर अटैच कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अ स्ट्रेंजर कैन नॉट एंडोर्स इट। इट मीन्स इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर और होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो भी एंडोर्समेंट की जाएगी, जो भी ट्रांसफर किया जाएगा या सिग्नेचर किए जाएंगे, वो कोई भी स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। ओनली जिसके नाम वो पहले एंडोर्समेंट की जा चुकी है या जो पेई है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं, सिर्फ वो इसकी एंडोर्समेंट कर सकता है, चेक की, बिल ऑफ एक्सचेंज की या प्रोमिसरी नोट की। देन इज इट मस्ट बी साइंड बाय द एंडोर्सर। जो एंडोर्सर है उसको अपना साइन करना आवश्यक है। फुल नेम जरूरी नहीं है, इनिशियल्स चल सकते हैं। यदि थंब इंप्रेशन किए गए हैं तो उनको अटेस्ट करना आवश्यक है। रबर स्टैंप नहीं चलती, बट डेजिग्नेशन शो करने के लिए हम रबर स्टैंप अपने इंस्ट्रूमेंट के पीछे या आगे जहां पर भी आप साइन कर रहे हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, इट मे बी मेड आइदर बाय द एंडोर्सर मेरली साइनिंग हिज नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अगर वो ब्लैंक है तो अपना सिर्फ नाम लिख दे, और बाय वर्ड शोइंग हिज इंटेंशन कि वो विलिंगली इसको एंडोर्स कर रहा है। अगर वो वर्ड्स भी उसमें डाल देता है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, बट यदि वो वर्ड्स भी साथ में लिख देता है कि क्या पर्पस से या किसको वो कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोर्समेंट इन फुल। एंड द लास्ट थिंग, एसेंशियल जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है, व्हेन इन अ बिल और नोट पेबल टू ऑर्डर द एंडोर्सीज नेम इज रॉन्गली स्पेल्ड। यदि बिल में या हमारे जो चेक है या किस उसमें हमारा जो नाम है बिल या प्रोमिसरी नोट में वो गलत भरा गया है, तो एंडोर्सी जो भी एंडोर्स कर रहा है वो पीछे अपने साइन तो करेगा, साथ में अपना करेक्ट स्पेलिंग भी लिखनी उसको आवश्यक होती है बिफोर एंडोर्समेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट जो सबसे पहला हमने बात की थी, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 4 हमें बताता है प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट कुछ नहीं है, एक सिंपल और सबसे पुराना माध्यम है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का। एक इंस्ट्रूमेंट जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है किसी प्रतिफल के बदले में कोई पेमेंट देने का। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे पहले बताया था वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, जो बनाने वाला है उसके सिग्नेचर होते हैं, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ, जिसके नाम हमने बनाया है उसको या उसके ऑर्डर को, अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यदि वो बियरर डॉक्यूमेंट है तो जो भी उसको होल्ड कर रहा है उसके नाम। ठीक है, ये हमारा प्रोमिसरी नोट होता है। पार्टीज की बात करें तो यहां पर 3 पार्टीज, बेसिकली तो 2 ही होती हैं, आप बुक में देखेंगे, बट 3 पार्टीज होती हैं। मेकर, द पर्सन हु इज प्रोमिसिंग टू पे द अमाउंट, पेई, द पर्सन टू whom द अमाउंट इज पेबल, यानी क्रेडिटर जिसको पैसा देना है, एंड द होल्डर, ही इज द पेई और द पर्सन टू whom द नोट माइट हैव बीन इंडोर्स, जिसको इंडोर्स किया गया है और प्रेजेंटली प्रोमिसरी नोट उसके पास है। इलस्ट्रेशंस में आप देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर दिए गए हैं जो राइटिंग हम देख सकते हैं प्रोमिसरी नोट। स्पेसिमेन में बात हम करें तो ये आपके सामने स्पेसिमेन है जिसमें ऊपर अमाउंट लिखा गया है, साथ ही लिखा गया है 1 month आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर AK झा और ऑर्डर द सम ऑफ 1000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी प्रतिफल भी यहाँ इन्वॉल्व है,
जितना अमाउंट आपने पे किया है डेफिनेट सम वो भी इन्वॉल्व है, कौन पेमेंट करेगा उसका नाम है, उसके नीचे सिग्नेचर है, स्टैंप है, ऊपर जो प्लेस है और जिस तारीख को ये प्रोमिसरी नोट बनाया गया वो है। यानी अगर फीचर्स की बात हम करें, पहली बात इन राइटिंग होगा, साइंड बाय द मेकर, जो भी बनाने वाला है उसके सिग्नेचर होने आवश्यक है। सेकंड, इट इज अ प्रॉमिस नॉट एन ऑर्डर, ये प्रॉमिस है कि मैं ये पेमेंट करने वाला हूं या करूंगा। थर्ड, प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए ये प्रॉमिस, ऐसा नहीं कि हम वहां पर एक कंडीशन लगा दे कि इसकी बेटी की शादी होगी तो उसके बाद जो है मैं आपको पैसा दूंगा, ऐसा कंडीशन हम नहीं लगा सकते। कोई कंडीशन यदि होती है तो ये प्रोमिसरी नोट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। फोर्थ इज मनी एंड सर्टेन सम ऑफ मनी, यहां पर मनी की बात यह है कि मनी इन्वॉल्व होगी, काइंड में हम नहीं कर सकते कि हम एक बाइक देंगे या हम एक स्कूटी देंगे या हम एक कार देंगे या कोई चीज देंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते। हमें यहाँ पर सिर्फ मनी मेंशन करनी पड़ेगी, कितने पैसे कितने रुपए दिए जाएंगे, साथ ही सर्टेन सम ऑफ मनी, उसका अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। फिफ्थ फीचर जो प्रोमिसरी नोट का होता है वो है अदर देन अ बैंक और करेंसी नोट, करेंसी नोट या बैंक इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। सिक्स्थ, नॉट पेबल टू द बियरर, प्रोमिसरी नोट कभी भी बियरर के नाम नहीं होता। इट कैन बी पेबल टू द ऑर्डर, ऑर्डर पे हो सकता है, यानी जिसके नाम, जो पेई है जिसके नाम, जिसको हमने पैसा देना है, यदि वो ऑर्डर देता है किसी को या वो अपना प्रोमिसरी नोट जो है किसी के हाथों पहुंचाता है तो हम उसके ऑर्डर पे सम पेमेंट करने के लिए बाध्य हैं, बट नॉट टू द बियरर, बियरर को हम नहीं करेंगे, हम उसके ऑर्डर को करेंगे, यानी उसके साथ में एक अटैच्ड होगा, ऑथराइजेशन होगी कि हाँ इसको आप पेमेंट कीजिए। एट्थ इज सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज, पार्टी जो है वो सर्टेन होने चाहिए, फिक्टिशियस पर्सन कोई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल, जैसे अभी तक प्रोमिसरी नोट में हमने पढ़ा इट इज अ प्रॉमिस, वेयर इज अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है हमें बताता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money, यानी यहां पर हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं, हम एक ऑर्डर दे रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को ताकि वो पेमेंट कर दे हमारे बिहाफ पे। मुलर की भाषा में, अकॉर्डिंग टू मुलर जो है, अगर हम इसको पढ़ें इसी का मीनिंग हम निकालते हैं, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग, इट मस्ट बी राइटिंग, एड्रेस्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एड्रेस करता है, साइंड बाय द पर्सन गिविंग, जो एड्रेस कर रहा है उसके सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए, रिक्वायरिंग द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड टू पे ऑन डिमांड, यानी जिसके नाम हमने ये ऑर्डर निकाला है, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं, उसको, जिसको एड्रेस किया है उसको हम आदेश दे रहे हैं टू पे ऑन डिमांड और अ फिक्स्ड डिटरमिनेट फ्यूचर टाइम, जो भी हम उसमें समय लिख रहे हैं, अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द पर्सन मेंशन्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसका नाम होगा। यानी यहां पर तीन पार्टीज हैं, पहला ड्रॉर, द मेकर जिसको हम कहते हैं जो लिख रहा है, दूसरा ड्रॉई, द पर्सन डायरेक्टेड टू पे द मनी, यानी मुझे किसी से पैसा लेना है, कोई मेरा डेटर है जिसको मेरा क्रेडिट देना है, ठीक है, और मुझे किसी और के पैसे देने हैं, तो मैं अब उस डेटर के नाम एक बिल बना दूंगा कि आप इस तारीख को या इस तारीख से पहले सर्टेन सम ऑफ मनी जो भी मेंशन्ड है वो मेरे क्रेडिटर को, जिससे मैंने सामान लिया है, जिसका नाम बिल में लिखा हुआ है, उसको पेमेंट कीजिए। हाँ, आफ्टर अ ड्रॉई ऑफ अ बिल हैज साइंड हिज एसेंट, जिस व्यक्ति के नाम आपने ये बिल बनाया है कि पेमेंट कीजिए, जब वो अपनी एसेंट दे देता है, जब वो अपनी कंसेंट दे देता है, तो हम उसको ड्रॉई नहीं बोलते, फिर हम उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। और थर्ड पार्टी होती है पेई, यानी जिसको पैसा देना है, जिसके अकाउंट में वो पैसा जाएगा। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ते हैं, फॉर्मेट आप देख सकते हैं सामने, अमाउंट लिखा हुआ है, प्लेस डेट मेंशन्ड है, स्टैंप होगा, टाइम ड्यूरेशन मेंशन्ड होगा, 60 डेज आफ्टर द डेट पे मिस्टर एबीसी अ सम ऑफ रुपीज। जो सारी बातें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में अभी यहां देख रहे हैं वही सारी बातें आपके प्रोमिसरी नोट में है।
सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्रोमिसरी नोट में हम खुद प्रॉमिस कर रहे हैं पेमेंट की, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में हम किसी और को ऑर्डर दे रहे हैं, थर्ड पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप पेमेंट कीजिए हमारे बिहाफ पर। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन ऑर्डर, इट इज साइंड बाय बोथ द ड्रॉर एंड द एक्सेप्टर। जिसने बनाया वो तो साइन करेगा, साथ ही जो एक्सेप्ट कर रहा है यानी हमारा डेटर, वो भी इसके ऊपर साइन करेगा। थर्ड फीचर इज इट इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई एंड डज नॉट हैव एनी कंडीशन अटैच, कोई कंडीशन यहां पर भी अटैच नहीं करनी है। फोर्थ, अनलाइक अ प्रोमिसरी नोट विच इज अ प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर। फिफ्थ, इट इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और अ फिक्स्ड पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड पे यदि आप पे करेंगे या उससे पहले यदि डिमांड किया जाता है तो पैसा आपको देना पड़ेगा। और आखिरी बात जो इसमें जरूरी है वो है प्रॉपरली स्टैम्प। हर बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप लगी होनी चाहिए जो कवर करता है उस अमाउंट को जो बिल में लिखा रहता है। ये जरूरी है, ये याद रखना सभी के सभी। एक स्टैंप लगी रहेगी जो कवर करेगा उस अमाउंट को जो बिल में लिखा रहता है या लिखा जाने वाला है। ये क्लास में जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर ये बात आएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है तीसरा हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज चेक। अ चेक, अगर आपका बैंक में खाता है, सेविंग हो या करंट अकाउंट हो, और आपने किसी की पेमेंट करनी है, तो इट इज नॉर्मल, सभी को पता है मैक्सिमम, कि हम एक चेक इशू करते हैं उस व्यक्ति के नाम पर। उस व्यक्ति के नाम पर एक चेक इशू करते हैं, और चेक जो है ये एक ऑर्डर होता है अब हमारे बैंक को कि यदि ये व्यक्ति ये चेक लेकर आपके पास आता है तो जो अमाउंट इसमें लिखा हुआ है वो आप उसको दें। तो यहाँ पर एक बैंक को हम ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्शन किसी थर्ड पर्सन को नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे खाते में से वो अमाउंट जो है उस व्यक्ति के नाम पे जो चेक प्रेजेंट करता है उसको दिया जाए। पार्टीज की बात करें तो यहां पर भी जो चेक बना रहा है उसको हम बोलेंगे ड्रॉर, जिसके नाम बनाया गया है उसको हम बोलेंगे पेई, और ड्रॉई हम बोलेंगे अपने बैंक को जिसको हमने ऑर्डर दिया है पेमेंट करने का। चेक जो है ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बट डिफरेंस यहां पर इतना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी थर्ड पर्सन को हम देते हैं जो हमारा डेटर है, बट चेक हम अपने बैंक के नाम बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्पेसिमेन आप देख सकते हैं, नॉर्मली देखते भी हैं, हर एक चेक पर एक डेट होती है। अ चेक शुड मेंशन द अमाउंट ऑफ मनी, फिगर में एज वेल एज वर्ड्स में अमाउंट आपका लिखा जाता है, आपका अकाउंट नंबर वहां पर होता है। अ चेक मस्ट बी साइन बाय द पर्सन ड्रॉर इशूइंग द चेक, जिसने चेक बनाया है उसके सिग्नेचर किए जाते हैं। अ चेक मस्ट बी ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंक, एक बैंक के नाम पे हम जो है चेक इशू करते हैं, बैंक को इशू ऑर्डर जो है वो बैंक को होता है। और अ चेक मस्ट हैव द नेम ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको चेक का पैसा मिलना है उसका नाम भी लिखा जाना चाहिए, जरूरी है। जैसे यहाँ पर सैंपल में आप देख सकते हैं मिथिर बजाज का नाम लिखा हुआ है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ चेक्स की, चेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हम 4 की बात हम यहाँ करते हैं, 4 टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज ट्रंकेटेड चेक, ट्रंकेटेड चेक, और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक चेक। दोनों में इतना डिफरेंस है, ट्रंकेटेड चेक आपके फिजिकल चेक को जब स्कैन करके एक वर्चुअल फॉर्म में कंप्यूटर में लोड कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना दी जाए, तो हम उस मिरर इमेज को, चेक की मिरर इमेज को हम बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। यहां पर हम फिजिकल ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम उसकी उस इमेज को ट्रांसफर करके दूसरे बैंक में, यदि आपका खाता दूसरे बैंक में है और आपने जो है पैसे दूसरे बैंक से लेने हैं, तो वहां पर जो है वो आपस में जो लेन देन है उनका चेक की इमेज जो है भेजी जाती है, ना कि फिजिकल चेक को भेजना है। इससे हमारी जो ड्यूरेशन है चेक क्लियरेंस की वो कम हो जाती है। क्लियरिंग पर्पस के लिए हम ट्रंकेटेड चेक्स जो है उनको प्रचलन में लाते हैं। देन इज इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल चेक। यहाँ फिजिकल चेक्स में जहां पर हम अपने पेन से सिग्नेचर कर रहे हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक चेक्स में आप डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है ओपन चेक। ओपन चेक वो चेक जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग ना की गई हो। आप नॉर्मली देखते हैं चेक के ऊपर 2 लाइनें खींची होती है,
यदि वो लाइनें नहीं खींची हुई तो हम वहां पर उसको बोलते हैं ओपन चेक। ओपन चेक जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डर चेक, बियरर चेक। साथ ही फोर्थ कैटेगरी आपकी होती है क्रॉस चेक। ओपन चेक आर दोस चेक विच आर पेड अक्रॉस द काउंटर, यानी यदि आप इस चेक को लेकर जाते हैं तो काउंटर पे आपकी पेमेंट कर दी जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपका खाता उस बैंक में है या नहीं है, या आपका खाता किसी भी बैंक में है या नहीं है, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पेमेंट जो है काउंटर पे कर दी जाती है। ओपन चेक दो प्रकार के, जैसे अभी हम पीछे पढ़ा, बियरर चेक, ऑर्डर चेक। बियरर चेक का मतलब अगर किसी व्यक्ति का नाम है, चेक पे लिखा हुआ है, इफ अ ड्रॉर ऑर्डर्स द बैंक टू पे अ सर्टेन स्टेटेड मनी टू द बियरर, जो होल्ड कर रहा है, जो भी जिसके पास भी वो चेक है, तो यहां पर हम उसको बियरर चेक बोलते हैं। एनी पर्सन हु लॉफुली पोजेस द बियरर चेक इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, जिसके पास भी वो चेक है उसको पेमेंट पाने का अधिकार है। नेक्स्ट इज ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक वो चेक जहां पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, यानी अगर नाम नहीं लिखा तो हम उसको बियरर चेक बोल देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब आप सोचेंगे नाम बिना लिखे हम कैसे किसी के चेक हम इशू कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम चेक पे सेल्फ लिख देते हैं जब हमें अपनी पेमेंट खुद चाहिए होती है, तो हम यदि वो सेल्फ चेक है तो हम वहां पर उसको बियरर चेक बोल देते हैं। ठीक है, हम उसको इस कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक किसी का नाम है, यदि वो व्यक्ति खुद आए या किसी और व्यक्ति को ऑर्डर करे और काउंटर पे जाता है तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट इज क्रॉस चेक। क्रॉस चेक जहां पर दो लाइनें लिखी होती हैं, जैसे आपका ये सैंपल आप देख सकते हैं, यहां पर दो लाइनें ऊपर आपने ड्रॉ कर रखी हैं, तो यहां पर हम इसको बोल देंगे क्रॉस चेक। क्रॉस चेक ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक विद और विदाउट द वर्ड्स। क्या क्या वर्ड्स हम यहां पर लिखते हैं, एंड कंपनी और अकाउंट पे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कैन नॉट बी पेड एट द काउंटर। क्रॉस चेक में और ओपन चेक में ये अंतर है। ओपन चेक जहां पर काउंटर पे पेमेंट करने का हक देता है, क्रॉस चेक बोलता है कि यदि आप मुझे प्रेजेंट करेंगे तो आपके खाते में पैसा जाएगा, आपको ऑन द काउंटर पैसा नहीं दिया जाएगा बैंक से। लीगली दो प्रकार की क्रॉसिंग की जाती है, फर्स्ट जनरल क्रॉसिंग, दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग, टू पैरेलल लाइंस कैन नॉट बी पेड एट काउंटर, काउंटर पे नहीं पेमेंट होगी। कैन बी एंडोर्स टू एनीवन, हम ये किसी को भी एंडोर्स कर सकते हैं। पेमेंट विल बी मेड थ्रू बैंक, पेमेंट बैंक के द्वारा की जाएगी। दूसरी आती है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में टू पैरेलल लाइंस विद नेम। इसमें और नॉर्मल क्रॉसिंग में यह अंतर है कि यहां पर बैंक का नाम बीच में जुड़ा होता है, और ये इतना बड़ा इफेक्ट डालता है कि यदि आपका उस बैंक में, जिसका भी नाम यहां पर लिखा है, यदि आपका उस बैंक में अकाउंट है तो ही आप इस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस चेक की पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। अब आती है लीगल एस्पेक्ट्स जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं जो अपना सेक्शन है 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सेक्शन आपको डिसऑनर ऑफ चेक की बात बताता है। द सेम ऑल्सो डिफाइंस मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें, या एसेंशियल कंडीशन जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी यदि चेक का डिसऑनर है और आप उसकी पेमेंट पाने के लिए कोई कोर्ट केस करते हैं। इफ अ पर्सन इशूज अ चेक, यदि आप एक चेक इशू करते हैं एंड इट गेट्स डिसऑनर्ड, उसको डिसऑनर या अनादरण जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, इट गेट्स डिसऑनर्ड, द पर्सन is said to have done a criminal offense। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है उसके खिलाफ जिसने भी वो चेक इशू किया था। यहां रीजन कोई भी हो, whatever be the reason of the dishonor, whether for insufficiency of fund, हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा ना हो सकता है आप दिवालिया हो, ठीक है, या और कोई रीजन भी हो सकता है, बट यहां पर हम किसी भी रीजन को नहीं देखेंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। बेसिक प्रिजम्पशन इस सेक्शन की बोलती है डिसऑनर ऑफ अ चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। 5 बातें जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है, which shall have to be fulfilled for creating an offense। पहला, should be towards legal liability, यानी चेक के द्वारा जो आप पैसा दे रहे हैं,
चेक के द्वारा आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा देना आपकी लीगल लाइबिलिटी है। एक्सक्लूजन जैसे है गिफ्ट, आपने किसी को कोई चेक दिया एज अ गिफ्ट, तो वहां पर वो आपने अपनी मर्जी से दिया, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी। तो यहां पर आप डिसऑनर ऑफ चेक के केस में, यदि वो चेक डिसऑनर होता है जो आपको गिफ्ट में मिला है, आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते। सेकंड, वैलिडिटी पीरियड, एक चेक को आप प्रेजेंट करने के लिए आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है। थर्ड, यदि चेक डिसऑनर होता है तो आपको उसका रीजन बैंक से बताया जाता है, एक रिटर्न मेमो आपको लेना पड़ेगा। फोर्थ, आपको नोटिस देना पड़ेगा 15 डेज का, किसको? उस व्यक्ति को जिसने चेक बनाया था, जिसके साइन उस चेक में हुए हैं, उसको नोटिस आप देंगे। और यहां पर यदि आपको चेक एंडोर्स किया गया है, आपको किसी और व्यक्ति ने चेक दिया, तो जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सभी के खिलाफ जो है आप जो है यहाँ पर कंप्लेंट प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। फिफ्थ इज द ड्रॉअर ऑफ द चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेट अमाउंट ऑफ मनी। जब आप 15 दिन का नोटिस देते हैं तो उसके 30 दिनों में जो है रिसीट इन द 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सेड नोटिस आपको पैसा नहीं मिलता जो चेक में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर डिसऑनर ऑफ चेक की बात लाते हैं। सेक्शन 138 इसके लिए पनिशमेंट देती है डिसऑनर ऑफ चेक के लिए, जो 2 साल की कैद साथ में एक फाइन या पेनल्टी कह सकते हैं जो हमारा अमाउंट है चेक का। यानी अगर चेक में 1 लाख रुपए का अमाउंट भरा हुआ है तो वहां पर उस व्यक्ति को जिसका चेक डिसऑनर हुआ है उसको 2 लाख रुपए तक की यानी दोगुने अमाउंट की जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। साथ ही 2 साल की सजा भी उसको दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मली सभी के दिमाग में आते हैं, जो लीगल एस्पेक्ट्स की यदि हम बात करते हैं, लीगल लिटरेसी सेल का एक फंक्शन है, अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल। यदि आपका चेक डिसऑनर हुआ है तो क्या ये एक बेलेबल केस है, क्या यहाँ पर आपकी रिहाई हो जाएगी? तो यस, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है और नॉन बेलेबल वारंट जो है नहीं इशू किया जाएगा अनलेस आप जानबूझकर वो पैसा नहीं देना चाहते या आप जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट नहीं करते तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा। अगर आप कोऑपरेट करते हैं, पैसा देना भी चाहते हैं या और कोई केस है तो यहाँ पर आप बेलेबल वारंट जो है आपके होगा और आप जो है अपनी रिहाई करवा सकते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। सेकंड क्वेश्चन, कैन सेकंड नोटिस ऑफ डिमांड फ्रॉम ड्रॉअर gave a new cause of drawing? आंसर है ना, नो कह सकते हैं हम इसको। कैन सेकंड नोटिस ऑफ डिमांड, अगर हम एक और नोटिस देते हैं ड्रॉअर, तो यहां पर जो ड्रॉई है जिसको पैसा मिलना है उसको क्या एक और रीजन मिलेगा? तो यहां पर आंसर नो है। द ड्रॉई ऑफ अ चेक दैट इज डिसऑनर्ड हैज ओनली वन लाइफ, यानी एक बार यदि आपका डिसऑनर हो गया चेक तो आपके खिलाफ नोटिस और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पोस्ट डेटेड चेक इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट और नॉट? पोस्ट डेटेड चेक, जब हम फ्यूचर की किसी डेट का चेक बना देते हैं तो क्या वो वैलिड है या नहीं? द आंसर इज यस। एक पोस्ट डेटेड चेक इज अ चेक दैट बियर्स अ डेट दैट इज आफ्टर द डेट व्हेन द चेक इज मेड आउट, साइंड एंड डिलीवर्ड, सिग्नेचर भी है, डिलीवरी भी है, सारी वैलिडिटी कंडीशन पूरी फुलफिल है, वो दिया जाता है। तो यहां पर ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138? सेक्शन 138 में यदि कोई ऑफेंस किया जाता है, कोई गुनाह किया जाता है तो उसका केस कहां जाएगा? एज पर सेक्शन 142C ऑफ द एक्ट, नो कोर्ट इंफीरियर टू अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इससे नीचे नहीं, केवल इन्हीं के पास जो है आप इस केस की सुनवाई के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसीजर इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक? यदि चेक बाउंस होता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा? सबसे, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से आप सुनते रहिए क्योंकि मैंने यहां पर इसको लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो शिकायत करता है यानी जिसको पैसे मिलने थे उसको
यदि वो बैंक में अपना चेक ले जाता है और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, वो करेगा एक लीगल नोटिस भेजेगा 15 दिन का, एक लीगल नोटिस भेजेगा 15 दिन का आरोपी को। अगर इंडिविजुअल है तो यहां पर सेक्शन 138 अप्लाई होता है, यदि कंपनी है तो सेक्शन 138 के साथ में 141, 142 भी अप्लाई होते हैं। अगर 15 दिन के अंदर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सब? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है आपकी आवाज। अगर 15 डेज के नोटिस पे, पहली बात तो 30 डेज का नोटिस आपके पास टाइम होता है उसके पास लीगल नोटिस भेजने का। यदि वो उस लीगल नोटिस के 15 दिन के बाद भी आपका पेमेंट नहीं करता तो अगले 30 दिन आपको मिलते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं उसके खिलाफ। सेकंड, इज इट नेसेसरी टू सेंड लीगल नोटिस? क्या लीगल नोटिस भेजना जरूरी है? तो यहां पर इसका आंसर है यस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि यदि चेक बाउंस हुआ है तो 30 दिन के अंदर आपको जो है उसका 15 दिन के अंदर आपको जो है लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। आफ्टर 15 डेज यदि वो नहीं पेमेंट करता तो 30 डेज, जैसे अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फेल टू सेंड लीगल नोटिस इन 30 डेज, यदि हम 30 दिन के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजने में भूल जाते हैं तो क्या करें? यदि आप 30 दिनों के अंदर, यानी जब आपने प्रेजेंट किया चेक वो डिसऑनर हो गया, उसके 30 दिनों के अंदर आप जो है लीगल नोटिस भेजना भूल जाते हैं टू द मेकर, जिसने भी चेक वो बनाया है, तो आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्सपायरी ना हुआ हो आपका चेक, यानी 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो भी कोलैप्स ना हुआ है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे बैंक में। बैंक आपको एक रिटर्न मेमो देगा और उस रिटर्न मेमो के बेस पर आप 15 दिन का नोटिस मेकर को, मेकर ऑफ चेक को देंगे, दोबारा भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल बी द चेक बाउंस केस बी फाइल्ड? चेक बाउंस यदि होता है तो उसका केस कहां फाइल किया जाएगा? तो इसका आंसर ये है, जहां भी आपके बैंक की, यानी जिसको पैसा मिलना है, शिकायतकर्ता जो है, जहां पर भी उसके बैंक की मदर ब्रांच है, उस एरिया के कोर्ट में, जो भी कोर्ट वहां पर एप्लीकेबल है, वहां पर चेक बाउंस का केस डाला जाएगा। यानी अगर 2 पार्टीज हैं, एक राजस्थान में जिसने चेक बनाया, दूसरा दिल्ली में जिसको चेक वो दिया गया, और वो दिल्ली में अपनी ब्रांच में जाके, एसबीआई की ब्रांच में जाके चेक प्रेजेंट करता है, बट चेक बाउंस हो जाता है, तो अब वो दिल्ली के कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएगा और वहां पर उसके खिलाफ केस फाइल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन वी फाइल एन एफआईआर इन केस ऑफ चेक बाउंस? यदि चेक बाउंस होता है तो क्या हम एफआईआर कर सकते हैं? आंसर है नहीं। बेशक ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बट यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये अलाउ नहीं करता कि कोई भी एफआईआर की जा सके। यानी यदि हम एफआईआर करने जाते हैं तो पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर इसी के साथ एक सिलसिलेवार कहानी बनाई गई है जिसमें धोखाधड़ी भी इन्वॉल्व है और भी कई मैटर आते हैं कि आप फ्रॉड किया गया है, एक पूरी व्यू रचना की गई है और फिर आपको चेक दिया गया है ताकि आपके पैसे ना देने पड़े, तो यहाँ पर फ्रॉड के केस हो सकते हैं और फिर आप जो है पुलिस केस कर सकते हैं, एफआईआर आप कर सकते हैं। लाइक फेक साइन किए गए हैं, फेक एग्रीमेंट है और इसी प्रकार के कोई और, यदि हम वहां पर पाया जाता है कोई क्रिमिनल केस, तो हम जो है एफआईआर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एवरी काइंड ऑफ चेक बाउंस इज अ क्रिमिनल एक्ट? क्या हर प्रकार का चेक बाउंस यदि होता है कोई भी प्रकार का तो वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? तो आंसर है नो। ओनली दोज चेक बाउंस जहां पर एक लीगल लाइबिलिटी थी, पैसा देना एक लीगल लाइबिलिटी थी, आपने किसी प्रतिफल के खिलाफ अगेंस्ट में, प्रतिफल के अगेंस्ट में आपने चेक इशू किया था, आपके लीगल लाइबिलिटी थी, तो ही उस चेक बाउंस का एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई यदि आपको गिफ्ट दिया गया है या कोई लोन आपको दिया गया है जहां पर किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं था और चेक बाउंस
हो जाता है तो वहां पर वो एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोई भी केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक बाउंस इन्वॉल्व्स अ सिविल केस और क्रिमिनल केस। यदि चेक बाउंस होता है तो ये एक दीवानी मामला होगा या एक आपराधिक मामला होगा। तो यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है ये एक आपराधिक मामला है जिसमें आप जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास केस कर सकते हैं, 2 साल की कैद और जो भी अमाउंट चेक में लिखा है उसका 2 गुना अमाउंट आपको देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई एम गिल्टी डू आई नीड टू विजिट कोर्ट एवरी टाइम ऑन डेट्स ऑफ प्रोसीडिंग। यदि मैं एक अपराधी हूं या आरोपी हूं तो क्या हर तारीख पे मुझे जाना पड़ेगा? यस। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं और जो दूसरी पार्टी है जिसने केस किया है, आपका चेक बाउंस हुआ, आप गिल्टी हैं और केस किया गया है दिल्ली में, तो दिल्ली की कोर्ट में हर बार जब जब प्रोसीडिंग की जाएगी, जब जब तारीख मिलेगी, तब तब आपको तमिलनाडु से दिल्ली आना पड़ेगा। यहां पर अगर आप नहीं अपीयर होते तो आपके खिलाफ कोर्ट सख्त कदम उठाती है। एक नॉन बेलेबल वारंट जिसमें आपको किसी प्रकार की जमानत नहीं मिलती, वो आपके खिलाफ इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी डन एट द सेम टाइम। यदि चेक बाउंस हुआ है तो क्या दोनों सिविल दीवानी और क्रिमिनल आपराधिक मामले दोनों साथ में हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, दोनों के दोनों साथ में किए जा सकते हैं, बट कोर्ट अलग रहेगी। ठीक है, जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत की जाएगी, जिसमें 2 साल की कैद और 2 गुना अमाउंट जो भी चेक में लिखा है वो आपको मिलेगा। साथ ही सिविल केस आप कर सकते हैं रिकवरी ऑफ मनी के लिए, आप अपने पैसे लेने के लिए एक सिविल केस कर सकते हैं, दीवानी मुकदमा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ चेक इज फिल्ड बाय मी बट साइंड बाय द मेकर विल इट अफेक्ट द केस। यदि चेक जो है वो मैंने अपनी राइटिंग में भर लिया, मान लो किसी ने आपको चेक दिया जिसमें कुछ भी नहीं भरा था, सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ था, या अमाउंट भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ एक साइन किया और ब्लैंक चेक आपको दे दिया, और चेक आपने अपनी राइटिंग में भरा, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है, पहली बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक साइन वैलिड हैं, उस व्यक्ति के हैं, तब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किसने उस चेक को भरा था। म्यूचुअल कंसेंट हम दोनों की थी, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सलाह ये होती है कि आप खुद की राइटिंग में कभी भी किसी प्रकार का ऐसा चेक ना भरें, क्योंकि जब केस किया जाएगा तो आपके पास सबूतों की कमी हो सकती है, और सबूतों की कमी होने के एवज में जो केस है वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट ना जाकर आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि आपके पास उसके सबूतों की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ चेक गिवन बाय अ कंपनी whom should the notice be addressed to। यदि चेक जो है कंपनी ने आपको दिया था और वो बाउंस हो गया, तो आप नोटिस किसको देंगे? आंसर यहां पर है कंपनी को एड्रेस किया जाएगा नोटिस। साथ ही जो जो व्यक्ति आपसे डीलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं या पीछे रहे हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जिनको अथॉरिटी दी गई है, उन सब के खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं, उन सब के नाम आप नोटिस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन डाइज एक्यूज्ड, जो आप जिसके खिलाफ आपने केस किया है, जिसका चेक बाउंस हुआ था और आपने केस कर दिया, यदि वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ केस आपका चल रहा है, जैसे आप देखते हैं इंडियन जो कोर्ट्स हैं उनमें केसेस चलते रहते हैं, कई सालों चलते हैं, और जो एक्यूज्ड है वो बीच में मर जाता है, तो क्या किया जाएगा? तो यहां पर कहते हैं क्योंकि यह आपराधिक मामला है, उसके उत्तराधिकारी को पास नहीं होगा, यानी जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसका जो बेटा है या उसकी बेटी है, उसके खिलाफ कोई केस करने के लिए आप हक नहीं रखते। जहां पर ये केस, जहां पर वो मरता है, जैसे वो मरा आपका केस वहीं पर समाप्त मान लिया जाता है। हाँ, आप सिविल केस कर सकते हैं रिकवरी ऑफ मनी के लिए, और सिविल केस में आपकी प्रोसीडिंग जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उनके
इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसमें से आप अपना शेयर जितना भी आपका चेक में बनता था वो रिकवर कर सकते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, सिविल प्रोसीडिंग की जाएगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केस खत्म मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई गेट इंटरिम प्रोविजन कंपनसेशन इन डेज ऑफ द चेक बाउंस प्रोसीडिंग? जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, जब केस ये चल रहा है, तो उस दौरान क्या आप कोई इंटरिम राहत पा सकते हैं? तो यहां पर आंसर है यस, 20% तक कोर्ट आदेश दे सकती है कि आपको वो पैसा दे दिया जाएगा। यानी मान लो आपका 1 लाख रुपए तक का केस है तो 20,000 रुपए कोर्ट बोल सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी को कि आप जो है ये 20,000 रुपए इसको दे दे। ठीक है, ये 1000 की बात हमने की है, लाखों में भी हो सकती है, करोड़ों में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। यस, यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि यदि एट द एंड जो डिफॉल्टिंग पार्टी है जिसके खिलाफ आपने केस किया है वो जो है पूरी तरह से बरी हो जाती है और उसका कोई भी फॉल्ट नहीं पाया जाता, तो अब जो 20,000 रुपए या 20% अमाउंट आपको उसने दिया है, अब वो हकदार होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने का। यानी केस के एंडिंग में केस यदि आपके खिलाफ जाता है तो आप उसको 20,000 रुपए भी देंगे, 20% अमाउंट भी देंगे, साथ ही 20% अमाउंट पे जिस दिन उसने आपको पेमेंट दी थी, कोर्ट के आदेश अनुसार जो पेमेंट आपको दी थी उस पे उसका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा, वो उसका हक बन जाता है। अगर वो हारता है तो आपको वो रिमेनिंग 80% भी दे देगा, साथ में जो कंपनसेशन या जो उम्र कैदी 2 साल की कैद जो उसको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड टू रिसीव 3 लाख एंड गॉट अ ब्लैंक चेक। आपको 3 लाख रुपए लेने थे, सामने वाली पार्टी ने आपको एक ब्लैंक चेक दे दिया, आपने उसमें इंटरेस्ट जोड़कर 3.5 लाख रुपए का अमाउंट भर दिया और चेक बाउंस हो गया। क्या ये एक प्रॉब्लम होगी यदि आप केस करते हैं? तो यहां पर आंसर है कि यस, प्रॉब्लम तो होगी। प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि आपका किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं था कि आप उससे डिफॉल्ट के केस में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या आप किसी प्रकार का इंटरेस्ट उससे चार्ज करेंगे अगर आप डिले करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आपका कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई इनवॉइस नहीं है, कोई बिल नहीं है जिसके एवज में आपने 50,000 रुपए उसमें जोड़े। हाँ, यहां पर यदि आपका एग्रीमेंट है कि आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा तो आप यहां पर 3,50,000 करेंगे और केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आता है नेक्स्ट, वो है प्रोसीजर ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमने चेक के डिसऑनर की बात हमने कर दी, अब है डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज यदि हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अगर डिसऑनर होता है 2 प्रकार से हो सकता है, नॉन एक्सेप्टेंस एंड नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस तो तब है जब आपका डेटर उस बिल को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो एग्री नहीं करता कि मैं आपका पैसा दूंगा या उस व्यक्ति को पैसा दूंगा जिसका भी नाम आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, तो वो नॉन एक्सेप्टेंस कहलाई जाएगी। बट नॉन पेमेंट, आपके जो डेटर है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं पैसा दूंगा, बट ऑन द ड्यू डेट जब भी 2 महीने बाद वो बिल लेकर जाता है, पे ही जाता है, उसको वो पैसा देने से मना कर देता है, तो यहाँ पर नॉन पेमेंट कहलाई जाएगी। यहाँ पर स्टेप्स जो रहते हैं वो रहते हैं, सबसे पहला यदि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, अनादर हुआ है उसका, तो आप पहला काम करेंगे नोटिंग। आप नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, उससे एक नोटिंग करवाएंगे जिसमें वो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ये लिखेगा कि आपने प्रेजेंट किया था और सामने वाली पार्टी ने जो उसका डेटर था जिसका भी लाइबिलिटी बनती थी उसने वो पेमेंट करने से इनकार कर दिया। साथ ही नोटरी पब्लिक अपना स्टैंप उस पे लगाएगा, सिग्नेचर करेगा, जिसके एवज में जो है आप उसको एक फीस देंगे। दूसरा स्टेप जो रहता है वो रहता है प्रोटेस्ट। नोटिंग आपने करवा ली, साथ ही आप दूसरे स्टेप करते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब एक सर्टिफिकेट हम नोटरी पब्लिक से ले लेते हैं जिसमें वो सारी डिटेल लिखता है कि किस तारीख को बिल इशू हुआ था, किसने इशू किया था, कौन कौन पार्टीज थी और कैसे उसको डिसऑनर किया गया। एक बार हमें नोटिंग और प्रोटेस्ट हमने करवा ली, अब हमें हक है उस बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर के खिलाफ कोर्ट में प्रोसीडिंग हम चला सकते हैं। आप कोर्ट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑन डिसऑनर ऑफ बिल। कंपनसेशन कितनी मिलेगी यदि बिल डिसऑनर होता है, तो कंपनसेशन कितनी मिलेगी? तो यहां पर कहते हैं जो भी अमाउंट बिल में लिखा गया है, साथ ही उसके नोटिंग चार्जेस या प्रोटेस्ट जो आपने इसका सर्टिफिकेट लिया है, जो भी चार्जेस आपके लगे हैं वो सारे के सारे आपको जो है एज अ कंपनसेशन मिलेंगे।
अगर सेम कंट्री में है तो उसी करेंसी में, अगर कंट्री अलग है तो डिफरेंट करंट आपका एक्सचेंज रेट है उसके अनुसार जो है आपको पैसा मिलेगा। यहां पर यदि आपने बिल को एंडोर्स कर दिया था, यानी किसी और के नाम हस्तांतरण कर दिया था, तो यहां पर एंडोर्सर उसका पैसा लेता है जब, तो उसको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करने का हक मिलता है। नेक्स्ट इज आईपीसी 420 एप्लीकेबल, ये हमने पहले भी कर दिया। डिसऑनर यदि होता है तो क्या 420 420 हम का केस हम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। यदि फ्रॉड किया गया है, जानबूझकर किया गया है, तो हम वहां पर कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल एग्रीमेंट्स वैलिड और नॉट। क्या ओरल एग्रीमेंट यदि हम करते हैं तो वो वैलिड है या नहीं है? या हमने अभी तक पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सिर्फ रिटन एग्रीमेंट्स होने चाहिए, रिटन फॉर्म में होने चाहिए, बट क्या ओरल एग्रीमेंट्स होंगे, वैलिड हैं या नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि ओरल एग्रीमेंट्स वैलिड हैं, क्योंकि ये केस आया था 1881 में, जहां पर जब इतनी लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी, इतने प्रूफ्स नहीं मेंटेन किए जाते थे, तभी भी ये केसेस जो है चलते थे। अब भी यदि आप ओरल एग्रीमेंट करते हैं वो वैलिड मान लिया जाएगा, बशर्ते आपके पास गवाह होना चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए, कोई ऐसा थर्ड व्यक्ति होना चाहिए जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, बट वो वहां पर मौजूद था, जो गवाही दे सके कि हाँ किसने धोखा किया, किसने धोखा नहीं किया। यदि हम उसको प्रूव कर पाते हैं तो इसको हम वैलिड मानेंगे, अदरवाइज नहीं। और आखिरी क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन लोग पूछते हैं, दैट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ डिसीजन टू कम। डिसीजन कितने दिनों में आएगा? तो इसका आंसर देने के लिए आई डोंट थिंक कि हाँ कोई भी लॉयर जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे सकता है कि कितना समय लगेगा। ये तो प्रोसीडिंग्स के ऊपर है, केस के ऊपर है, जितना लंबा चलेगा, जितनी प्रोसीडिंग होगी, जब जब तारीख मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली केस चलेगा। आखिरी बात एक और इसमें ऐड करूंगा, इसके बाद जो है अपना ये डिस्कशन स्टॉप करता हूं मैं। इज हुंडी ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हुंडी जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट कंडीशन अप्लाइड। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, हुंडी एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ओरिएंटल लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें लिखा जाता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है, बस यहां पर जो गवर्न करते हैं, जो लॉ हमारा चलता है, वो बेसिक कस्टम एंड ट्रेड ऑफ ट्रेड या यूसेज जो लोकेलिटी में फॉलो किए जा रहे हैं, बेसिक कस्टम्स, उनके द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि यदि कोई भी रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, आपने हुंडी बनाई और हुंडी को एक्सचेंज भी किया एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, बट उसके जो केस बनता है उसमें कोई भी रूल नहीं है, लोकल कस्टम का कोई रूल नहीं है, तो यहां पर कोर्ट बोलती है इसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रूल लगेंगे, वो इसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो हुंडी जो है कंडीशंस के ऊपर, हाँ साथ ही यदि आप हुंडी करते हैं उसमें साथ में लिख देते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विल बी अप्लाइड, तो उस केस में भी हुंडी जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की तरह बिहेव करेगा। थैंक यू। ओवर टू अमिता मैम। थैंक यू विक्रमान सर। अमिता मैम, कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, की क्वेरी हो? क्वेरीज है, यस मैम। Thank you, Vikraman sir, for sharing your valuable thoughts and knowledge with us. Lecture was so informative. I hope you all get good knowledge and new perspective about Negotiable Instrument Act, checks and all. Now, if any student or worthy colleagues have any query, can ask to our respective speaker. Any query? Those students who raised your hands also can ask questions now. सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अगर कोई जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने किसी पे लोन लिया है, 5 लाख का लोन ले लिया, तो अगर उसने 1 साल के लिए लोन लिया हुआ है और बाय चांस जिसने लोन दिया उसे पैसों की जरूरत पड़ गई और उसने बिना मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुए 1 साल पूरा हुए बिना पैसे वापस लेने चाहे, और हमारे पास इतने हैं नहीं बैंक में, हमने एक चेक दे दिया उसे 5 लाख का और हमारे पास बैंक में है नहीं, तो सर वो डिसऑनर हो गया, तो सर क्या होगा? हम जैसे वो कोर्ट में चला गए
है तो हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते? आप बच सकते हैं, आप बेशक बच सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यदि वो चेक डिसऑनर होता है। बट यहाँ पर आपका जो एग्रीमेंट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ था बेसिकली उस बिजनेसमैन से जिससे आपने लोन लिया था, ठीक है, जिसको आपने चेक इशू किया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर हमें देखनी पड़ेंगी कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने, क्या वहां पर आपने ऐसी कोई टर्म की थी कि इसके एवज में जो है बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमें वहां पर जो है केस को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है ये कह सकते हैं, डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आपको वहां पर राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके सर। सर एक सेक्शन 138 और बता दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 138 जो है बेसिकली आपको डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बताता है। ये कहता है, सेक्शन 138 बताता है कि यदि चेक डिसऑनर होता है तो क्या किया जाएगा, उसमें कितनी साल की कैद होगी, कहां पर आप केस फाइल करेंगे, कितने दिन का नोटिस आप देंगे, ये सारी बातें जो है हमारी सेक्शन 138 में बताई जाती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Anyone else have any query related to negotiable instrument acts? Yes, ma'am. Yes, please. You can ask your question. Yes. मैम, यदि मैंने एक चेक इशू किया है, फुल्ली करेक्ट, डेट वगैरह, अमाउंट, नेम, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट द रिसिपेंट मेड एनी मिस्टेक ऑन द चेक, इफ इट इज, मतलब मैं लायबल हूँ किसी भी लीगल एक्शन के, मतलब इसमें मेरी कोई गलती है चेक बाउंस में? राकेश कुमार, एक बार दोहराएंगे आप? सर जैसे मैंने एक चेक इशू किया जी, मतलब मैंने उसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है, मगर जो रिसिपेंट है जिसके पास चेक गया है जी, वो उसमें किसी प्रकार की कोई गलती कर देता है, अमाउंट चेंज कर देता है या कुछ भी, जी। तो क्या इसकी वजह से मुझ पे लीगल एक्शन होगा? लीगल एक्शन करने का हक उसे है, ठीक है, लीगल एक्शन वो कर सकता है, कोर्ट केस वो कर सकता है, ये हक उसको मिलता है। बट कोर्ट में वो ये प्रूव नहीं कर पाएगा या ये प्रूव नहीं कर सकता कि उसने गड़बड़ी करी है या आपने गड़बड़ी करी है, ठीक है। वो आपके खिलाफ ऐसा जो है, आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि आपने सब कुछ सही किया, ठीक है, और उसने जो है वहां पर पेन की जो इंक है उसका डिफरेंस भी वहां पर मिल जाता है, तो आप जो है इस तरह से कोई, मुझे नहीं लगता कि आपके खिलाफ ऐसी कोई केस होगा और आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सर। Okay, anyone else have any query? सर अगर कोई चेक है उसको फोर्ज किया था, सिग्नेचर्स फोर्ज थे उसमें, जो जिस पर्सन ने चेक इशू किया उसके सिग्नेचर्स फोर्ज किए हुए हैं, वो आगे किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया और उस पर्सन ने गुड फेथ में लिया है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो उस केस में जो वो पर्सन है वो रिसीव कर सकेगा उस पर्सन से जिसके अगेंस्ट वो चेक था? पेमेंट वो रिसीव कर सकेगा, जैसे मैंने फीचर्स में बताया था जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के होते हैं कि इंडिपेंडेंट टाइटल होता है। मान लो किसी ने बीच में फोर्स किया है, फ्रॉड किया है, वो आगे ट्रांसफर कर देता है, तो जिसको भी वो पैसे मिले हैं वो रिसीव कर सकता है पैसे। बट जब वो पार्टी जिसने चेक इशू किया था, जिसके या फोर्स सिग्नेचर हुए थे, अगर वो फाइल करता है केस, तो वहां पर उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, वो पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे उस पार्टी को जिसके वो एक्चुअली हैं, ठीक है, उसको भी वो फ्रॉड का टाइटल मिल जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्ररी है ये, बट ये फीचर भी है और साथ में एक एडवांटेज भी मिलती है। Okay, anyone else have any query? No one? सर हेलो सर, जैसे आपने बताया था कि ये चेक में अगर वो उस बंदे की डेथ हो जाती है जिसने इशू किया था, उसके खिलाफ हम कोर्ट में थे, तो ऐसे ही अगर प्रोमिजरी नोट तब भी डेथ हो जाए तो तभी भी सेम जो लॉ है वही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेम है, 138 सेम है, स्पेसिफिकली डिसऑनर ऑफ चेक की बात जरूर करता है 138, बट वो इक्वली एप्लीकेबल है
बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट पर। ओके सर, थैंक यू। वहां पर आप उसके खिलाफ जो है आपराधिक नहीं, अब दीवानी मामला केस फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। Anyone else? Okay. Anyone else have any query? No one? Well, I hope you all get solution of your problem. Now, I would like to invite our respected ma'am, HOD of Commerce, co-convener of this extension lecture, Dr. Seema Pandey, to propose a vote of thanks. Seema Pandey, ma'am. Thank you, Amita ma'am, for giving me this opportunity. Good evening to all of you. First of all, I extend my heartiest thanks to our today's resource person, Mr. Vikramjit Maan, for sparing his valuable time for being with us. Sir, your talk is enriched with facts and conceptual information. Our students are enlightened and definitely get benefited with your thought-provoking session. And then now I want to express my gratitude to our principal, Dr. Meenakshi, who is always being inspiration and guiding force behind every event. Thank you, ma'am. Thank you so much for encouraging us. I also want to thank our organizing team member, including Ms. Preeti, convener of the event, Ms. Amita, organizing secretary, other team members, Komal Garg, Preeti Sharma, and Vinay Kumar, without whom this event would not be a success. And along with this, I want to thank Ms. Amita for conducting the session in such a beautiful manner. Last but not the least, I extend my thanks to all the participants who attended the session carefully and patiently. Thank you one and all. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, Seema Pandey, ma'am. Now all the teachers are requested to turn on their cameras so that we can take a screenshot. Please, all of you, turn on your camera, please. स्टूडेंट्स भी ऑन कर सकते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी ऑन कर लीजिए प्लीज। Okay. Thank you all. Thank you, Mr. Vikram Maan, sir. Thank you, Principal Ma'am. Thank you all worthy colleagues. Thank you, students, for spare some time for this session. Now, you all can leave. Thank you very much. Thank you, ma'am, for inviting me. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, all teachers. Thank you so much, all teachers, for this lecture. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.